या हर एक बड़े ब्रांड की एक बड़ी कहानी होती है, बट मयंक को कब लगा कि उसको कुछ एक नया स्टार्ट करना चाहिए? So I filed my first patent just after 2 years of graduating, and more than I think 10 patents overall as a portfolio. Something which quite a less people know about me. We have seen another company that is becoming big with two buddies from the college and now building a great brand. And we are exporting the charging station, the fast charging stations, to US market now. And a couple of chargers have already gone live in US. तो अगर हम ईवी इकोसिस्टम के स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें आप क्या करेंगे? स्टार्टअप के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं आज भी? Made in India. दैट इज व्हाट हर कोई व्यक्ति अपने कैपेसिटी में, कैपेबिलिटी में क्या क्या कर सकता है इस पूरे इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए। तो आज अगर मैं कोई शॉप ओन करता हूँ तो क्या मैं एक अपना ईवी चार्जर लगा सकता हूँ? क्यों लोगों को एक इलेक्ट्रिक कार खरीदनी चाहिए? चाहे उसको सेकंड कार ही लें, बट क्यों उसको खरीदनी चाहिए? आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? Let's bring it on. Akshay Kumar to have our brand ambassador. यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, इतनी हंसी है ये दुनिया। हाय, दिस में क्या और हम आ गए हैं पिवट पॉइंट के एक और नए एपिसोड के साथ। तो आज का जो एपिसोड है बहुत ही यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि आज का पॉडकास्ट मैं होस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो कौन होस्ट कर रहा है? आज का पॉडकास्ट होस्ट करने वाले हैं मिस्टर प्रियदर्शी, जो हमारे एक प्रीवियस ईवी के गेस्ट रह चुके हैं, ईवी सीरीज के। वो ईवी एक्सपर्ट हैं, IIM अहमदाबाद से पास आउट है, और जिसका हम एज ए गेस्ट पॉडकास्ट लेने वाले हैं वो हैं ईफिल के CEO एंड फाउंडर। ईफिल क्या कर रहा है? ईफिल गैप फिल कर रहा है ग्रीन ट्रांजिशन का। तो आज के पॉडकास्ट को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आप ईवी एंटरप्रेन्योर हैं, ईवी सेक्टर में कुछ काम करना चाहते हैं, इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आप जरूर देखें। और मैं वेलकम करूंगा मिस्टर प्रियदर्शी और मिस्टर मयंक का। So Mayank, let me just start. Who is Mayank behind the scenes? The dreamer, the hustler, the person who battled unseen challenges to get here. Tell us more about you. Hi PD, thanks for having me at Pivot Point. Love to be part of this episode and discussion. So a lot of people know me as a founder of EFIL Electric. So I'll talk maybe what's more to Mayank apart from EFIL Electric. So I'm an engineer in mechanical and automation, and with more than 11 years of experience in core automotive research and development. And if I really talk about what drives me when I'm working, so it's basically the innovation and the passion for innovation, I would say. And as a person, I'm little introvert, and I love reading self-help books. And quite a few people don't know that I did my PG certification in patent practices. So, which actually, you can say, drove me in filing initial couple of patents in my career. So, I filed my first patent just after 2 years of graduating. So, that's something which quite less people know about it. And that patent is already granted now. So, apart from that, I have almost 6+ patents grant, and more than I think 10 patents overall as a portfolio of my own. Yeah, so that's something which quite a less people know about me. That was awesome, Mayank. I think the number of patents that you have already done, a lot of us may not be even thinking about it, but you have already been granted and you have already applied for a lot of them. Great to know that. I believe our audience will love to know the Mayank behind the scene that has been working on this great brand. So let me just work on the second thing here. So brand, या हर एक बड़े ब्रांड की एक बड़ी कहानी होती है उसके पीछे, जो हर कोई जानना चाहता है। एक यूज़र को ये तो पता है कि आज मयंक फाउंडर है ईफिल का और दैट्स द बिजनेस इज डूइंग गुड, बट मयंक को कब लगा कि उसको कुछ एक नया स्टार्ट करना चाहिए? सो वी वुड लव टू नो अबाउट दैट स्टोरी. Yeah, so basically it started way back, like from my college days only. So in my college only, I did a couple of research projects that was more of a product, I would say. तो हमने वहाँ पर कॉलेज में अपने 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसे करे. फॉर एग्जांपल माय कॉलेज डेज, द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट वी डिड वाज शेलिको मैराथन, wherein we had to build a working prototype of a super mileage car, and that we drove to Malaysian Grand Prix तो circuit. इस सुपर माइलेज कार की कितनी माइलेज थी? So we were able to, I mean, so surprisingly, the engine that, or interestingly, the engine that we were using
was just a 36cc engine, Honda 36cc engine. तो आप कोई कंपैरिजन अगर बताना चाहेंगे कि So basically, the mileage that we got was approximately 70 kilometers ओके from a single seater 3-wheeled vehicle. So 70 kilometers in 1 liter. ओके Yeah, so 70 that was किलोमीटर पर 70 लीटर kilometer. Yeah, but that was a prototype and that was a single seater. And तो आज कोई टिपिकल व्हीकल 40 से 50 किलोमीटर देगा यू आर एबल टू अचीव 70 किलोमीटर so that was sort of, I would say, a kind of a project not viable commercially, because the speed at which it was running was also just like 20 odd kilometers. So we cannot have the same sort of vehicle for ground application. मतलब हम normal use के लिए उसको नहीं कर सकते हैं use. But yeah, so that was just one initial project. And after that, I led a team of 25 odd people in my college again. That was a Supra SAE competition that we took part in. तो उसमें हमें एक फॉर्मूला स्टाइल व्हीकल हमें बिल्ड करना था. सो आई हैव ऑलवेज बीन लाइक इंट्रीग्ड एंड इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग प्रोडक्ट एंड इनोवेटिंग different part of product or solving different problems related to the products. And then I started my career with the tier 1 automotive R&D, which was a DSIR approved R&D center actually. And then I moved to another design center, Japanese design center, where I was involved in the core design analysis, the CAE, computer aided engineering. Okay. And then I joined Yamaha and in engine design and powertrain basically. So in Yamaha I was leading couple of projects in engine and powertrain. तो वहाँ पर मुझे exposure मिला कुछ global EV related projects में involve होने का. So there I was involved in a team of around 18-20 odd people, जिसमें करीब 15 लोग जापान से थे एंड 4-5 लोग इंडियन टीम से थे. सो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम वेयर आई गॉट इन्वॉल्वड इन अ ईवी प्रोजेक्ट. सो दैट वाज माय फर्स्ट स्टिंट इन द ईवी सेक्टर, आई वुड से फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द ईवी. तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जनरेट हुआ टुवर्ड्स द ईवी सेक्टर. एंड दैट टाइम द क्लाइमेट कंडीशन और आई वुड से द जोग्राफिकल जो इंडिया में पॉल्यूशन का इतना ज़्यादा, हम इफ़ यू रिमेंबर 2015 से 2018, सो हर साल हम देख रहे थे कितना स्मॉग और फॉग. सो दैट वाज अ मेजर प्रॉब्लम स्टेटमेंट देयर. द थर्ड पॉइंट की अब देन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट सॉल्विंग टू दिस मेजर प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन एंड सस्टेनेबिलिटी. तो देन बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग discussion with my co-founder, who's basically Rupak is my co-founder at EFIL. So Rupak and I are college batchmates only, and so Rupak was in US that time. So hum over phone we used to chat a lot and have calls overnight. Ki matlab this is I'm doing right now. I was there at Yamaha during that time. So and I'm getting involved in such projects globally, और EV में ये चल रहा है. तो वहाँ से हमने ट्राई किया कि सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इसका, और या फिर हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बिगर कॉज को, राइट. तो हमने आइडेंटिफाई किया कि अगर ई मोबिलिटी एडॉप्शन आएगा यहाँ पे, या फिर लेट्स से अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में आएंगे तो क्या प्रॉब्लम, या फिर उसको कैसे सपोर्ट किया जाए टू रीच टू द मासेस. तो उसके लिए हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करा, डिस्कस किया, बहुत कुछ किया हमने. इनफैक्ट वी डिस्कस्ड फॉर अ ईवी कन्वर्जन किट ऑल्सो, कि इनिशियल डेज में हमें लगा था कि हो सकता है कि ईवी एडॉप्शन में नया ईवी यूजर जो होगा वो कम होगा परचेज करने के लिए, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ फिटमेंट की तरफ देख रहे थे. एग्जैक्टली. सो दैट इज वेयर आई सी कि आपने ईफिल की तरफ अपना जर्नी शुरू करने की कोशिश करी. राइट. ओके, ग्रेट. सो लेट मी जस्ट स्टॉप यू देयर, एंड बिकॉज एक सवाल मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से घूम रहा है कि ये दोस्ती यारी, वी हैव ऑलवेज सीन कॉलेज फ्रेंड्स get building a big brand together, and we have seen another company that is becoming big with two buddies from the college and now building a great brand. एक ईफिल जो ये नाम है काफ़ी अलग सा है. सो बिफोर ईफिल के बारे में और जानने, मतलब ईफिल के बारे में और जानने से पहले हम ये समझना चाहेंगे how does this name actually came up, EFIL Electric. So if you can tell us more, that'll be great. Sure. So
अगेन दिस इज एक्चुअली फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ओनली. तो हमने आइडेंटिफाई किया है कि अगर मास अडॉप्शन पे जाना है, अगर ई मोबिलिटी को लेके जाना है, तो हमें चार्जिंग का जो सब आई थिंक जैसे ईवी की बात होती है सबसे पहला थॉट में आता है, दिमाग में आता है कि चार्जिंग कहाँ पर करेगा कोई भी यूज़र. सो दैट वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट वी आइडेंटिफाइड कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है ई मोबिलिटी में. तो ये क्लियर हो गया था कि हमें चार्जिंग में कुछ करना है एंड चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है बेसिकली, कि चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है. देन केम कि अब उसको व्हाट शुड बी द नेम ऑफ द ब्रांड. सो ई फिल इट्स बेसिकली मतलब सिंपल, अगर किसी को भी एक ई फिल के अगर हम बोलें तो ई हाइफन फिल, सो इट्स काइंड ऑफ फिलिंग So electric. energy into Energy. so filling energy or electrons. So in a way कि e-fill से जैसे अभी अगर आप देखें कुछ भी Paytm for example, so you can recognize कि payment से related कुछ है, तो e-fill is easy to understand related to the EV charging. So that's how we started. So And can I say energy filling or filling of energy with this brand? yeah, it's you can say कि energy filling or electrons filling, or so yeah, that was the thought behind e-fill. Got it, got it. That was wonderful to know. So let's just fast forward to today, right? E-Fill Electric. So tell us about what exactly E-Fill has been doing till now. What are your successes that you have done? What are your future plans? What segments are you dominating as such? And what are your new frontiers to explore? Okay, so I'll start with the career journey of the e-fill, I would say, or the initial days of e-fill. When So- did you start? With what year? Yeah, so we started in so we registered e-fill in 2019, Perfect. and I got full involved in 2020 itself, after just after COVID actually. So COVID was a period wherein we utilized that period for detailed business modeling and brainstorming on different aspects, different solutions, different problem statements. So we started actually in 2020, wherein initially in 2019 we installed couple of chargers from an existing OEM. Tried to understand. 2019 में आप चार्जर इंस्टॉल कर चुके थे. 2019 में 2020 हम- में आपने थोड़ा और प्लान करना शुरू किया. Right. So 2019 में हमने चार्जर इंस्टॉल कर दिए थे. We started with 2 charger installations just to basically get a market understanding. Right. So हमने 2 चार्जर इंस्टॉल किए. One was at a highway and the other one was at a shopping complex. Okay. And we observed both the chargers for 6 months. So the chargers were from an existing manufacturer. So we identified कि hardware में issues थे, and software was also not user friendly, and then installation commissioning of that charger was also another problem statement. So we identified कि 3 मतलब अगर charging infra अगर built कोई भी करेगा, so they have to deal with 3 different aspects. They need a reliable hardware, they need a reliable platform, or you can say user friendly interface for charging, and third is कि installation commissioning कौन provide करेगा, या फिर after sale services कैसे provide करें. तो these were the 3 different aspects of charging infrastructure. So initially हमने तब 6 महीने ऑब्जर्व किया चार्जर्स को इंस्टॉल, जो हमने 2 चार्जर इंस्टॉल किए, एंड वी रियलाइज कि यार उसमें इट वाज सॉर्ट ऑफ जीरो चार्जिंग, मतलब बिकॉज 2019 में लाइक देयर वर हार्डली 2-3 मॉडल्स फ्रॉम OEM. EV वाज अ वेरी न्यू, यू कैन से वर्ड दैट टाइम. तो EV का ये awareness चार्जर भी जो नहीं थे था. वो 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर So किस that was segment a- के लिए थे? That was a level 2 charger for 4-wheeler actually. So because 3-wheeler I think उस टाइम पे कोई भी 3-wheeler मॉडल So ये इलेक्ट्रिक क्या मॉडल नहीं था. wattage, क्या अगर आप ऑडियंस This was a 7 kilowatt. 7 kilowatt. This was a 7 kilowatt type 2 charger that we installed, and 6 महीने में हमने देखा कि कोई यूटिलाइजेशन नहीं है. So that was the first I would say pivot that we took. हमने डिसाइड किया कि will not go in as a charge point operator. Initially we thought of starting as charge point operator, building good infrastructure network basically. That was the first pivot that we decided कि in initial couple of years we need reliable product, we need someone to provide end-to-end solution, like installation कौन करेगा, then user friendly interface कौन provide करेगा. So that's and also coming from the core product background, so I think this was bound to happen. So we tried to solve the problem in hand. So first problem was कि एक solution as in the charger, a reliable charger
should be there first. Charger होगा, then only someone will install and then the infrastructure will get. So again, as we say, chicken and egg problem. गाड़ियाँ होंगी तो चार्जर होंगे, चार्जर होंगे तो गाड़ियाँ होंगी. Right. So that was the first key. हमने pivot किया कि we will build a product in the charging space. तो हमने Type 2 AC charger से start किया. Then we so then we started building the DC chargers. So 15 kilowatt CCS2 charger was the first DC charger that we developed, and I can say that we were the first charger OEM who developed 15 kilowatt CCS2 product for Indian market. And I mean it was pretty good in the sense कि electricity connection for 15 kilowatt was actually not difficult to take, बिकॉज फास्ट चार्जिंग स्टेशन में इनिशियली क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था. तो देन वी डिसाइडेड कि लेट्स मेक अ लेवल 2 सॉर्ट ऑफ लेवल 3 सॉर्ट ऑफ बिटवीन दैट 15 किलोवाट का चार्जिंग स्टेशन दैट कुड फास्ट चार्ज द व्हीकल. After that, we scaled that architecture to 30 kilowatt, and then we had our 60 kilowatt product. And in January this year, we launched our 120, 180, and 240 category portfolio. So, as on today, we have a portfolio of chargers from 3.3 kilowatt AC, LEV AC charger, up to 240 kilowatt DC fast chargers. And in the early days, only we identified that जो Indian market है, that is going to be following CCS2 standard. Yes. तो हमने we did not get into GBT. हमने GBT protocol पे development नहीं किया कभी भी, because similarly हम because I've been looking at the or working in the automotive from more than 11 years. तो BS3, BS4, so we have been following the Euro standards. So that's what I felt कि India is going to adopt the CCS2, which is a European protocol. So that's how has been the journey of product development at EFIL. ग्रेट till now. ग्रेट मयंक, दैट वाज ऑसम टू नो. और आपने एक बड़े अच्छे पिवट की भी बात करी. हमारे पॉडकास्ट का भी नाम है पिवट पॉइंट. Right. एंड रियली ग्लैड टू नो दैट सम ऑफ दीज पिवट्स दैट रियली हेल्प द ब्रांड टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम व्हाट दे वर डूइंग और जो वो आज कर रहे हैं. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी ज़रूरी भी है. दैट वाज रियली रियली नाइस टू नो. तो आज ईफिल सिर्फ क्या CPO है, क्या वो चार्जिंग में ही काम कर रहा है, और आर दे डूइंग समथिंग एल्स ऑल्सो? Yeah, so EFIL is not a CPO. Again, to be very clear, so EFIL is empowering CPOs. ओके. So we are a product OEM, and we are not just making the products for Indian market. हम already US अपना product export करना start कर चुके हैं. I'm proud to share with you that EFIL Electric has developed CCS1 and NACS compatible chargers, and we are exporting the charging station, the fast charging stations, to US market now. And a couple of chargers have already gone live in US. So तो ये already कितने चार्जर हैं, क्या बैटरी कैपेसिटी है? So the capacity of chargers जो हम export कर रहे हैं US is from starting from 120 kilowatt. So 120, 180 and 240. These three products we are exporting to US, and at the same time, like through these charging station, the user can charge a Tesla also or a CCS1 compatible vehicle also. So yeah. तो हमें ये लगता है कि शायद कहीं पे जो आपने R&D, जो आपने डिज़ाइन में अपना टाइम बिताया, तो काफ़ी टेक्निकलिटीज़ में जो आपने टाइम बिताया, उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ आपको फाइनली आपके लाइफ में. एज वी से EFIL इलेक्ट्रिक, दैट इज़ वाई वी कैन सी सच अ नाइस प्रोडक्ट. लाइक एज वी सीन इन टाइम्स ऑफ स्टीव जॉब्स ऑल्सो, लाइक he has talked about what he did in his life, calligraphy classes and all that we have all known, and that's why you see such a nice designs in Apple, right? Maybe do you see that is where आपको भी कहीं पे उस चीज़ का फ़ायदा मिला है, आज आपके जो प्रोडक्ट्स हैं जो इतने अच्छे चल रहे हैं और US तक आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं? So yeah, I truly believe in that the statement that you can always connect the dots looking backwards, and you just trust on your gut and your karma, and whatever is happening for the good. तो जो भी आपके difficult phases हैं, so those all phases are actually going to help you in your journey. Those are going to be your major experiences that are going to help you in your future decision makings. So yeah. Very nice, very nice. So I believe if we talk about this podcast 10 years later, that we should be able to connect some dots for sure. Yeah, this is also actually my first experience on a podcast. So this is actually going to help me in my maybe
further Let's talk podcast. after 5 to 10 years then, for sure. Once we finish this. Yeah. So that's pretty awesome that we have learned from you. EFIL आज मेरे को जैसे आज हम कहेंगे तो एक still a startup I believe, right? Right. You said आपने 2019 you started and it's just been 5 years. Correct. आपको क्या लगता है एक ईवी इकोसिस्टम अगर हम के बारे में अगर हम बोलना चाहें तो कोई भी एक बड़े ब्रांड या एक इवन अ बिगर चैलेंज फॉर अ स्टार्टअप टू एंटर, सो दोनों सिनेरियोस के बारे में बताइए. एक अगर कोई बड़ा ब्रांड है उसको क्या प्रॉब्लम है जो आज भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है विच रिक्वायर्ड सपोर्ट, लेट्स गेट इनटू दैट, राइट. एंड दूसरा एक स्टार्टअप के लिए फर्दर क्या प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है आज. सो स्टार्टअप के लिए जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहता है सबसे इनिशियल व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग, सो इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट प्रॉब्लम स्टेटमेंट यू आर सॉल्विंग एंड देन हाउ यू आर एबल टू कन्विंस योर फर्स्ट सेट ऑफ कस्टमर्स. तो इनिशियल कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड देन scaling from there, that is the initial struggle that every startup goes through. और जो बिगर एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए द स्विफ्टनेस, जो स्टार्टअप में स्विफ्टनेस होता है डिसीजन मेकिंग का, दैट एजिलिटी. सो बिगर एंटरप्राइजेज में वो एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम, मतलब इनिशियली प्रॉब्लम रहता है क्योंकि उनका डिसीजन मेकिंग का हायरार्की सेट होता है, तो वहाँ पर टाइम लगता है. हर चीज़ को लेकर अगर डिसीजन लेना है या फिर कोई अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च भी करना है तो इट टेक्स टाइम देयर. स्टार्टअप्स में ये प्लस पॉइंट है कि द डिसीजन मेकिंग इज क्विक, गो टू मार्केट इज क्विकर. सो दीज आर द बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स आई वुड से. From a big company and फ्रॉम a- बिग कंपनी, यस. तो अगर हम ईवी इकोसिस्टम के स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें आप क्या करेंगे, स्टार्टअप के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं आज भी. अगर आज मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ जो ईवी इकोसिस्टम में घुसना चाहता हूँ, तो व्हाट डू यू सजेस्ट एंड व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू शुड एक्चुअली लुक इनटू इट. ईवी इकोसिस्टम में स्टार्टअप्स के चैलेंजेस हैं स्केल राइट नाउ. सो अभी इंडिया में अभी वो स्केल अभी नहीं रीच हुआ है. ऑल्दो इंडिया में भी कुछ सेगमेंट्स हैं जैसे 2 व्हीलर 3 व्हीलर, जहाँ पर अभी वी कैन सी कि 3 व्हीलर इज़ ऑलमोस्ट 50+% अडॉप्शन ऑलरेडी, एंड 2 व्हीलर इज़ ऑलरेडी वी आर मार्केट लीडर्स ग्लोबली इन 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स. बट अभी 4 व्हीलर में अगर देखें तो 2% के आसपास हमारा अडॉप्शन है. तो जो स्केल ऑफ इकोनॉमी है दैट इज़ नॉट देयर. तो अभी स्टार्टअप्स अगर 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेक्टर में ऑलरेडी हम देख रहे हैं काफ़ी सारे क्राउडेड, इट्स ऑलरेडी क्राउडेड विद स्टार्टअप्स, एंड वहाँ पर स्केल इज़ नाउ गेटिंग देयर. आई मीन सो वी आर एबल टू सी द नंबर्स. बट 4 व्हीलर रिलेटेड अगर देखें तो वहाँ पर अभी काफ़ी स्लो ट्रेंड है. तो जो अभी अगर हम एक एनालॉगी है, अगर हम बात करें कि जो चाइना में एक महीने का प्रोडक्शन है वो यहाँ पे पूरे साल का भी नहीं है किसी भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का. That अगर is हम the बात करें difference that एग्जैक्टली we- दैट सॉर्ट ऑफ डिफरेंस वी आर टॉकिंग अबाउट. वंडरफुल. ओके, सो इतना है जो अभी हमें और पोटेंशियल रीच करना है ईवी Exactly. इकोसिस्टम में अगर देखा जाए. एग्जैक्टली. अगर चाइना के आसपास भी कहीं पहुंच पाना है इस प्रोडक्शन लेवल्स या बाकी अगर सिस्टम जो मैच कर रहा है उसके लिए, वाओ, सो दैट इज बिग. सो वी हैव अ बिग जर्नी टू गो ऑन, राइट. आपने 2 व्हीलर्स के बारे में बात करी. ओला इलेक्ट्रिक वी ऑल नो हैव रिसेंटली लॉन्च एन आईपीओ. राइट. पहले दिन 20% भी बढ़ा. आपका क्या टेक है उस पे? So it is good actually. It is good to see कि yeah, it is good to see कि I think this is the first IPO of a pure electric company which is basically into electric mobility. So it is actually going to encourage many more startups to go for IPO and particularly the e-mobility space. So it is obviously good for the complete EV startup community. And the way Ola has scaled within 3 years, so that's a really commendable job that Bhavesh has done. So Great. Congratulations to all the Ola Electric people and the great work that they have done. And we are very sure कि ऐसे ही और भी IPO जल्दी आए. Someday maybe EFIL Electric will yes, also go into hoping for the IPO. same. Yeah. That'll be a great day. So आज EFIL Electric के बारे में बात किया जाए तो how are you funded? So how many investors are you? What are you exploring more? Tell us about your funding plans here. So we have been bootstrapped so far. Wow. So it's been almost 5 years 5 now. years, yes. And EFIL is still bootstrapped. And now we have reached to the level that we want to scale up aggressively.
and we have already started discussions with a couple of funds and VCs, and so we are in the phase of raising our first pre-series A round of funding, जहाँ से will be scaling our reach. So we are actually raising our first pre-series A round of funding, which we would be utilizing basically for tapping different market. Like US, we already started. So we're going to add more team members through that funding, and obviously we need to develop 2-3 more product for the US market. Like we are working on 400 kilowatt super fast charger for the US market. So we are going to utilize the fund for marketing, for team expansion, for adding more portfolio products, and also few certifications, global certifications. So yeah, so that's, I mean, we're in at regarding funding. Just to tell our users, 400 kilowatt बैटरी चार्जर, एक आप अगर एक एनालॉजी इसमें देना चाहें तो एक टाटा नेक्सॉन आई थिंक 40 किलोवाट बैटरी कैपेसिटी के साथ आती है, तो 400 किलोवाट इज लाइक द 10 टाइम्स ऑफ अ टाटा नेक्सॉन बैटरी. Exactly. राइट, सो इतना है. सो आई थिंक the market that you are looking at is both car, buses, trucks, Correct. any vehicle can get charged. I think a Tata Motors bus is somewhere at around 400 kilowatt battery size. Right, and I'll share one interesting fact or trend with you. For example, let's say we are seeing कि अभी जो battery charging होती है, it takes around for 50 minutes or 1 hour to completely charge a vehicle, a 4-wheeler typical vehicle. So moving forward, we are going to see 2-3 vehicles to be launched by one of the leading 4-wheeler automotive OEM, and it is going to be charging at a rate of 2C. 2C मतलब 2C मतलब आपको एक व्हीकल को या बैटरी को चार्ज करने में आपको आधा घंटा लगेगा. तो 2C इज बेसिकली यू जस्ट डिवाइड इट बाय 2, लाइक 1 आवर. अगर 4C है, सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 4, एंड इफ इट इज 1C, अगर 1 घंटा लगता है तो 15 मिनट्स. अगर सो एग्जैक्टली अगर 4C है तो 15 मिनट्स, 2C है दैट मीन्स की हाफ एन आवर. सो वी आर गोइंग टू सी 2-3 व्हीकल्स टू बी लॉन्च विद इन दिस ईयर. सो यू कैन इमेजिन कि उसमें 150 किलोवाट आवर की स्पीड से चार्जिंग होगी. तो वी नीड फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस सो दैट कस्टमर का जो रेंज एंजाइटी वाला जो इशू आता है कि कस्टमर को फास्ट चार्जिंग चाहिए, तो वी आर गोइंग टू सी दैट ट्रेंड कि फर्दर मोर फास्ट चार्जर विल बी रिक्वायर्ड. सो 400 किलोवाट इज नॉट वेरी डिस्टेंट फ्रॉम टुडे. अगर हम ग्लोबल सेंटिमेंट्स, अगेन मैं वापस उसी क्वेश्चन पे आता हूँ, चाइना के साथ आज आप देखेंगे तो यूरोप हैज आल्सो रेज्ड अ बैन करेक्ट ऑन चाइनीज इंपोर्ट ऑफ व्हीकल्स. यस. हाउ डू यू थिंक ये इंडिया के लिए प्ले आउट करेगा इन द फ्यूचर? So it is already playing out so it is already playing out well for India, not just European market, but also we have seen US already put sanctions on import from China. So it is helping players like us from India in tapping the market, the US market. तो आपको लगता है कि शायद इंडिया भी किसी पॉइंट पे ऐसा कर सकता है, which will help you brands in India to grow more? I think already हम देख रहे हैं कि कुछ कस्टम ड्यूटीज भी बढ़ाई हैं हमने इंडियन गवर्नमेंट ने. लाइक फॉर एग्जांपल चार्जर्स इंपोर्ट्स पे देयर इज आई थिंक 20% ड्यूटी नाउ, सो विच इज हेल्पिंग प्लेयर्स लाइक अस हु आर मैन्युफैक्चरिंग द चार्जर्स इन इंडिया. ऑल्दो अभी भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, काफ़ी कंपोनेंट्स हैं जो अभी भी वी आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स. सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि विद इन नेक्स्ट मे बी 5 to 8 years जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है दैट विल बी बूमिंग अप. जो भी चिपसेट्स आईसीज वो हम इंडिया में हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग होते हुए. सो दैट विल बेसिकली ऑफलोड अवर डिपेंडेंसी फ्रॉम द चाइना और अदर कोरिया एंड ताइवान, ऑल दिस कंट्रीज. सो उसके बाद हम देख पाएंगे कि हम मतलब विल बी सेल्फ रिलायंट, एंड फ्रॉम दैट टाइम आई थिंक द गवर्नमेंट शुड एक्चुअली पुट मोर कस्टम ड्यूटीज एंड सैंक्शंस. सो जब तक Indian automotive industry, electronics industry is not ready, so the government should actually wait till that time and should actually actively try to get the localization of those critical components done. Okay, wonderful. तो localization पे अगर हम और बात करना चाहें, कोई any steps further that you require from the government? Already कुछ और नई schemes जो वो ला Yes. सकते हैं, PLI and all, we have seen government has done a lot of things. Exactly. So government has already done the PLI, and already the FAME 2 was there, wherein it was basically for the vehicle segment, 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler.
Now we have seen कि अभी charging infra में भी और the charging stations, charging solutions, hardwares में भी, so there is a phased PMP. So that the government is now actually asking the charger OEMs also to localize the components of the charging station. So I'll share another interesting fact with you कि already हमारे जो fast charger हैं उसके जो connector होते हैं already वो localize हो चुके हैं. So earlier we were importing, this is 1 year back, we were importing all the connectors. Now the connectors for the fast charger also and the slow charger also already localized. So this is how we are progressing in the localization area. तो एक अच्छी शुरुआत है आई बिलीव इंडियन Exactly. इकोसिस्टम के लिए. Exactly. कहीं ना कहीं हम एक मेड इन इंडिया फुली चार्जर देख पाएंगे जल्दी. I think that should be within next 3 years. हम 90% तक का लोकलाइजेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऑलरेडी हमने AC चार्जर्स में 90% लोकलाइजेशन अचीव कर लिया है. DC चार्जर में वी आर लैकिंग बिकॉज ऑफ couple of critical components. But yeah, we can see that within next 2 to 3 years, that should also reach to the 90% localization Perfect. extent. तो मैं इनको लगता है 2027 इज द ईयर फॉर इंडिया टू सी मेड इन इंडिया चार्जर. Exactly. तो मैं एक तो आपने कनेक्टर की बात करी, तो अगर मैं पूछूं कि और भी ऐसे कौन से स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं विच इज अ बिग चैलेंज फॉर यू, जिनका आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है बट इट हैज टू गेट इम्पोर्टेड ओनली. राइट. सो अभी अगर हम देखें तो पावर मॉड्यूल इज द मेजर यू कैन से component or I would say subsection which is imported right now. तो ऑलरेडी अभी इंडिया में कुछ स्टार्टअप्स हैं, कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है लोकलाइज्ड असेंबली लेवल पे. तो वी आर येट टू सी कंप्लीट localization of all those power modules. So power module is one thing, and then apart from that, the ICs, the chipsets that I was talking about little before. तो जो chipset ICs का localization हम हो सकता है कि हम देख पाएँ next 8 to 10 years, जिसमें टाइम लगेगा because silicon industry is now the next big revolution that is we are going to see in Indian market, right? So after that we can see 95% localization. तो बट अभी के लिए अगर हम देखें तो पावर मॉड्यूल इज़ द मेजर आई थिंक कंपोनेंट विच इज़ स्टिल मेजरली इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट PCBs ऑलरेडी लोकलाइज हो गए हैं, कनेक्टर्स ऑलरेडी लोकलाइज हो गया जैसे मैंने बताया, डिस्प्ले भी अभी कुछ लोकलाइज हो गए हैं, कुछ इम्पोर्ट हो रहे हैं. तो वी कैन सी दीज फ्यू कंपोनेंट्स गेटिंग लोकलाइज विद इन नेक्स्ट 2 to 3 years. Wonderful. So I believe Alicia Chenoy should be back singing Made in India song again in Yeah. 2027. Made in India. Yeah, that is what we want to see. So that was wonderful. आपके लिए अगर मैं कहूँ आज काफ़ी सारे entrepreneurs would be watching our podcast, right? What is your advice? So 5 years back, मयंक भी एक entrepreneur की journey start किया थे. So now somebody is actually looking to get into this ecosystem. What is your advice for those people? So yeah, I would maybe give 3 advices. First one is basically you should try to solve actual problem. मतलब एक तो है कि just trying to start up for the sake of it कि मतलब मुझे अपना कुछ करना है, but try to solve actual pain point or actual problem. So that is first critical point कि you should identify a bigger problem area. That is the first point. Second is that you should be very frugal in your spend, and you should always focus on the finances of your company. And the third thing is कि when you're building a startup or a product related startup, so it's always that in flow you forget how many people you are adding on board. So that's why we see a lot of startups wherein after a point of time they are overcrowded, and then they have to let a few people go. So this is something we should, or every startup should actually keep in mind, these 3 points based on my own experience. So जितने भी स्टार्टअप के एंटरप्रेन्योर सुन रहे हैं, तो एज मयंक सेड 3 एडवाइसेस जिसका सबका एक ही फाइनली मोटिव है, ध्यान रखें, स्पेशली ऑन द फाइनेंसेस व्हेन यू आर लुकिंग, व्हेन यू आर एडिंग मोर पीपल, ध्यान रखें, एंड यू शुड अंडरस्टैंड when at what limit that you spend, right? And also the problem statement, and the problem statement, that's the most important. मैं भूल गया था उसको, problem statement, that's the most important part. Yes. एक स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं कि मेरे को एक नया कंपनी ओपन करना है, but what is the problem that you are solving is more important. You should be solving a bigger problem actually. Yes, that's great. So एक और बड़ा एक EV यूजर से मैं मिला, इलेक्ट्रिक कार वो चलाते थे, तो उन्होंने बोला कि
आज मुझे पेट्रोल जब मेरे पास एक पेट्रोल कार थी या डीजल कार थी, आई वुड हैव टू गो टू अ पेट्रोल पंप, वहाँ जाके मुझे 2 मिनट स्पेंड करने पड़ते थे, बट आज मेरे घर पे ही पेट्रोल पंप है, एग्जैक्टली। राइट? सो काफ़ी अलग बट काफ़ी सही, राइट? तो आज उनको कहीं जाना नहीं पड़ता, घर पे इलेक्ट्रिसिटी है, उसे वो चार्ज कर पाते। तो आपको क्या लगता है इस ईवी इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए व्हाट ऑल शुड द पीपल डू? सो आज अगर एक और एडवाइस या आप देखें कि आज मैं किराना स्टोर का ओनर हूँ तो मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, आज अगर मैं कस्टमर हूँ तो क्या हेल्प कर सकता हूँ, लैंड इज़ अ बिग प्रॉब्लम ईवी चार्जर्स लगाने के लिए, राइट। वी हैव सीन काफ़ी मुश्किलें आती हैं। तो अगर आप ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स के बारे में बात करना चाहें कि हर कोई व्यक्ति अपने कैपेसिटी में, कैपेबिलिटी में क्या क्या कर सकता है इस पूरे इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए, हमेशा सरकार ही आगे नहीं आएगी, हम सभी को एक पार्ट उसमें लेना पड़ेगा। तो इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप अपना खुद का फ्यूचर का पेट्रोल पंप स्टार्ट कर सकते हो। तो आप फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपके पास कहीं पर लैंड अवेलेबल है, आपके पास किसी नियर बाय प्रीमियम यू कैन से सोसाइटी, और लेट्स से अगर आपके पास हाईवे पे कहीं पर लैंड अवेलेबल है और यू ओन अ होटल और ढाबा, तो आप वहाँ पर अपने पार्किंग स्पेस को चार्जिंग स्टेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वेरी इजीली। तो अभी आप पहले हम सोचते थे कि, या फिर पहले लोग सोचते थे पेट्रोल पंप ओन करना एक सपना काफ़ी लोगों का होता था कि पेट्रोल पंप एक अगर हमारा हो जाए तो वी आर सेट। तो बट नाउ एनीवन कैन ओन अ पेट्रोल पंप ऑफ द फ्यूचर विच इज़ अ चार्जिंग स्टेशन। सो अगर आपके पास एक 2 पार्किंग स्पेस का जगह कहीं पर भी है हाईवे पे, और वहाँ पर आपके पास लोड अवेलेबल है, नहीं भी अवेलेबल है तो यू कैन टेक द इलेक्ट्रिसिटी, अपग्रेड द इलेक्ट्रिसिटी लोड, एंड वहाँ पर एक चार्जिंग स्टेशन आप सेटअप कर सकते हैं विद इन 6 to 8 लाख रुपीज़, फास्ट चार्जिंग स्टेशन, जिससे 2 गाड़ियाँ एक साथ चार्ज हो सकती हैं 1 घंटे में। सो आई एम टॉकिंग अबाउट 60 किलोवाट, टिपिकल 50-60 किलोवाट ऑफ फास्ट चार्जर, और आप अपना चार्जिंग स्टेशन रन कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपको उसमें किसी परमानेंट मैन पावर या परमानेंट एम्प्लॉय को भी नहीं रखना। दिस इज़ कंप्लीट मैनलेस। आपने एक चार्जर इंस्टॉल कर दिया, ऑनलाइन उसको किसी भी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पे लाइव कर दिया, द एंड यूज़र, द ईवी यूज़र विल कम थ्रू डिस्कवरिंग प्लेटफॉर्म्स। अब तो गूगल पे भी डिस्कवरी एग्जैक्टली, सो चार्जर अभी आप गूगल पे भी देख पाएंगे। अब गूगल हैज़ ऑलरेडी रिसेंटली मेड द विजिबिलिटी ऑफ चार्जिंग स्टेशन ऑन देयर मैप्स ऑल्सो। तो डिस्कवरी के लिए थ्रू कस्टमर आपके चार्जिंग स्टेशन पे जाएगा और किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के थ्रू चार्जिंग स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकता है और आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देगा। तो इतना इजी हो गया है आज के टाइम पे चार्जिंग स्टेशन सेटअप करना। और एक और मज़ेदार बात है कि क्योंकि गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है, तो अभी चार्जिंग स्टेशन सेटअप करना इज़ बेसिकली क्वाइट ईजी सिंस इट इज़ डी लाइसेंस्ड। सो देयर इज़ नो लाइसेंस रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू सेटअप अ चार्जिंग स्टेशन। जैसे पेट्रोल पंप पे आपको बहुत सारे अप्रूवल्स और लाइसेंस वगैरह वो सब लेने आज पड़ते अगर हैं। मैं कोई शॉप ओन करता हूँ तो क्या मैं एक अपना ईवी चार्जर लगा सकता हूँ? एग्जैक्टली। सो अगर आप कहीं पर किराना शॉप अगर ओन करते हैं तो आप एक स्लो चार्जर लगा सकते हैं, और अगर कहीं पर आप होटल या ढाबा ओन करते हैं तो आप एक फास्ट चार्जर लगा सकते हैं। कहीं मल्टीप्लेक्स ओन करते हैं तो वहाँ पर आप मल्टीपल फास्ट चार्जर लगा सकते हैं। कहीं पर पार्किंग स्पेस आपका है 8-10 गाड़ियों का, तो वहाँ पर आप फास्ट चार्जर लगा सकते हैं। तो वी कैन सी फ्यूचर में डिफरेंट लोकेशंस पे हम चार्जिंग स्टेशन देखेंगे, जहाँ पर भी आप ये सोचिए कि जहाँ पर भी पार्किंग है स्पेस, वहाँ पर चार्जिंग स्टेशन होने वाला है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो ईवी चार्जर के साथ साथ मैं किसी दिन एक मल्टीप्लेक्स भी ओन करना चाहूँगा फॉर श्योर। या व्हाई नॉट, वुड लव टू बेसिकली विजिट दैट मल्टीप्लेक्स। फॉर श्योर दैट विल डू। हम काफ़ी बार सुनते हैं लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करिए, काफ़ी प्रीच करते हैं, बट खुद ही नहीं कर रहे होते हैं, राइट? देयर कुड बी सम चैलेंजेस फॉर श्योर, आई एम वेरी श्योर। लाइक मेरे जैसे आई स्टे इन अ DDA फ्लैट, राइट? माई पार्किंग इज अ लिटिल फार अवे फ्रॉम माई होम एंड आई स्टे ऑन अ फर्स्ट फ्लोर, राइट? तो मेरे लिए वो होम चार्जिंग इज नॉट देयर, राइट? आई डोंट हैव अ रिजर्व्ड पार्किंग एज सच। तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, इवन दो आई वॉन्ट टू ओन अ इलेक्ट्रिक कार बट आई कुडंट, राइट? तो मयंक जो काफ़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रीच भी करते हैं, फिर इलेक्ट्रिक कंपनी के ओनर भी हैं, वो इस इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या यूज़ करते हैं? या सो आई ड्राइव MG ZS EV विच इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली। तो मेरे घर पे मैंने ईफिल का ही चार्जर लगाया हुआ है, तो आई यूज़ लेवल 2 चार्जर इन माई पार्किंग।
तो या बट दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट यू जस्ट टॉक्ड अबाउट कि DDA में अगर आप फ्लैट में अगर रह रहे हैं तो हाई राइज सोसाइटीज़ में रह रहे हैं तो वहाँ पर अभी एक मेजर प्रॉब्लम है कि वहाँ की पार्किंग इज़ नॉट EV रेडी. तो वहाँ पर चार्जिंग स्टेशन नहीं है. कम्युनिटी चार्जिंग इज़ एक्चुअली मेजर प्रॉब्लम टुडे. तो अभी ऑलरेडी काफ़ी सिटीज़ में गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने पास करी हैं, नोडल एजेंसीज ने पास करी हैं कि सोसाइटीज़ RWS शुड अलाउ द रेजिडेंट्स टू हैव कम्युनिटी चार्जिंग और लेट्स से सेपरेट कनेक्शन लेकर वहाँ पर चार्जिंग स्टेशन सेटअप करें. तो हमें लग रहा है कि विद इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स कम्युनिटी चार्जिंग इज़ गोइंग टू बी देयर बिकॉज बिना कम्युनिटी चार्जिंग के EV एडॉप्शन कैन नॉट रीच टू अ स्केल. तो मैंने इसलिए भी सवाल किया बिकॉज होम चार्जिंग कहते हैं कि a user actually does 80% or 90% charges its vehicle at Right, home, right? right. Only 10% that too also जब वो कभी दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से जयपुर, बैंगलोर टू मैसूर, राइट, वी हैव सीन मुंबई टू पुणे, तब उसको एक ऐसी ज़रूरत आती है. तो वी कैन से कि 10% शायद बाहर से करना चाहता है, राइट. सो हैंस आई बिलीव्ड कि शायद होम चार्जिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. इस वजह से शायद इलेक्ट्रिक कार्स की अडॉप्शन में शायद कमी आ रही हो. तो आपको क्या लगता है जिन लोगों के पास रिजर्व पार्किंग आज नहीं है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट कार्स, राइट, अ कार स्पेस, क्योंकि टू व्हीलर तो आप फिर भी अपने गाड़ी मतलब बिल्डिंग के आसपास कहीं लगा के चार्ज कर सकते हैं शायद, राइट, बट कार के लिए आपको एक एम्पल स्पेस होना ज़रूरी है, राइट, एंड प्लस द सेकेंड इन्फॉर्मेशन इज द सेकेंड थिंग रिक्वायर्ड इज चार्जिंग, राइट. तो व्हाट डू यू थिंक कुड बी अनदर सोल्यूशन टू दिस? सो जैसे काफ़ी लोग आजकल हाइब्रिड्स के बारे में भी बहुत बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या हाइब्रिड एक अनदर क्लीन फ्यूल व्हीकल है फॉर स्पेशली दोज प्लेसेस जहाँ रिजर्व पार्किंग नहीं है? सो हाइब्रिड इज़ बेसिकली आई वुड से कि ट्रांजिशन एक सॉल्यूशन है बट अल्टीमेटली द इंडस्ट्री हैज़ टू मूव टुवर्ड्स आप हाइब्रिड के बारे में भी थोड़ा बताना चाहेंगे हमारे यूजर्स को एग्जैक्टली हाइब्रिड? सो हाइब्रिड भी मल्टीपल तरीके के हाइब्रिड सॉल्यूशंस होते हैं. सीरीज हाइब्रिड और यू कैन से प्लग इन हाइब्रिड. प्लग इन हाइब्रिड होता है जिसमें आपका चार्जिंग भी होता है और फ्यूल भी होता है. Fuel when we say is petrol or diesel. Exactly. Plus you also can Correct, charge your correct. vehicle. And Okay. pure hybrid होता है जिसमें there is no charging directly but उसमें एक बैटरी पैक होता है and majorly it is fuel. तो फ्यूल से इंजन रन होता है, इंजन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो बैटरी में जाता है एंड दैट्स हाउ द प्योर हाइब्रिड सिस्टम वर्क्स. क्योंकि अल्टीमेटली उसमें फ्यूल ही बर्न हो रहा है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट द कोर सस्टेनेबल सॉल्यूशन. द कोर सस्टेनेबल सॉल्यूशन वुड बी कि जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी हमारा ग्रीनर रिन्यूएबल सोर्स से आ रहा हो एंड हम व्हीकल भी प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल रन कर रहे हो. सो अल्टीमेटली सो आई कैन से कि हाइब्रिड इज बेसिकली ए ट्रांजिशन सॉल्यूशन. No, मेरा क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक था. जिनके पास आज रिजर्व पार्किंग स्पेस नहीं है, क्या उनके लिए ये एक अच्छा सोल्यूशन है? बिकॉज आज चाहते हुए भी अगर वो EV चार्ज नहीं कर पा रहे हैं तो बट दे स्टिल वांट टू मूव टुवर्ड्स अ क्लीनर फ्यूल व्हीकल, राइट. इज दैट अ सोल्यूशन? और आज अगर हम देखें तो क्या प्लग इन हाइब्रिड इंडिया में या किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट करती है? एंड या सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स? काफ़ी टॉक्स हैं, सम ब्रांड्स आर ओनली कमिंग अप विद हाइब्रिड, सम ब्रांड्स आर ओनली इनटू इलेक्ट्रिक, राइट. सो काफ़ी टसल भी वी कैन सी, राइट, कि किसको बेटर बनाए, किसको अच्छा बोले, किसको बुरा बोले. बट वी हैव सीन कि हाइब्रिड्स में भी काफ़ी नंबर्स बड़े हैं. वी हैव सीन ग्रेट नंबर अडॉप्शन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड देयर इज अ सिमिलर अडॉप्शन इन गोइंग इन हाइब्रिड व्हीकल्स आल्सो इन इंडिया. तो किस तरफ आप देखते हैं इसको if we talk about 2 to 3 years later, Ritipal? So I feel that the industry is going to move towards either hybrid or pure electric vehicle. So we can see जो अभी आज के डेट में pure IC vehicles हैं, so those are going to be less popular and people would first consider hybrid if not the electric, and the second choice or I would say the second vehicle is definitely going to be an EV. So that is what I can I mean already we can see in the adoption also. And the car that you drive, that's your first vehicle या वो भी second vehicle? So that is also second vehicle because I was driving an ISO vehicle earlier. So that is still there with me. But I on a daily basis I use EV. So which is your favorite petrol car? My favorite petrol car, which is the one that I own, is. I was expecting an answer that you will not say any of the petrol car. You will say I'll go electric only. So yeah, so that is so you can feel the rush in the EVs. So that pickup
is amazing if you compare with any other ICE vehicle. So people are skeptical कि EV है तो कितना स्पीड होगा पहाड़ में ले जाने के लिए. दे फील स्केयर्ड. ये इसके बारे में और बताइए. काफ़ी यूजर्स को एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम है कि शायद जब मैं ईवी या इलेक्ट्रिक कार चलाऊंगा तो ये प्रॉब्लम आएगी या ये प्रॉब्लम आएगी. सो मतलब नाउ दैट यू नो द एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग एन ईवी, राइट, तो इसको और मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब क्यों लोगों को एक इलेक्ट्रिक कार खरीदनी चाहिए, चाहे उसको सेकंड कार ही लें, बट क्यों उसको खरीदनी चाहिए? मेरा सिंपल आंसर ये होगा कि आप एक टेस्ट ड्राइव लो. आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का टेस्ट ड्राइव लो एंड यू विल फील इट कि यू विल फील द डिफरेंस बेसिकली. कैसा डिफरेंस? द पिकअप, द कंफर्ट, द वाइब्रेशन लेसनेस. आई वुड से कि कोई इंजन रन नहीं हो रहा है उस टाइम पर, कोई इंजन का नॉइस नहीं है, और जो गाड़ी का पिकअप है दैट इज़ अमेजिंग. द स्विफ्टनेस, जो रिस्पॉन्स टाइम है. तो अगर कोई ऑटो एंथुजियास्ट है तो दे वुड लव ड्राइविंग एन ईवी. तो so to all the viewers I would say ki if you are even not thinking, let's say if you're not thinking of buying an EV, I'm suggesting you that you should take a test drive and then take the decision. So this goes to all our OEMs which are working or providing pure EVs. Mayank is totally with you. Totally pro EV. Totally pro EV. And to all our listeners, to all our the audience, just go get a test drive of any of the electric vehicle or electric car that you have, and maybe शायद तभी आपको वो difference पता चलेगा और तभी आप शायद next vehicle, primary vehicle, secondary vehicle आप उसको लेना चाहेंगे. But I think we will all go pro EV here, as Mayank said, and we should all feel the difference of Yeah, it. you should definitely feel the difference. Perfect. So before we start up, so that's all my questions from you. Before we start up the final rapid fire round, थोड़े तीखे सवाल, थोड़े Okay. क्रेजी सवाल. Let's bring it on. परफेक्ट. सो ओला इलेक्ट्रिक का रिसेंट आईपीओ आया था. भाविश के लिए क्या एडवाइस है? एडवाइस नहीं बोलूँगा, चेयर्स ऑन द IPO. परफेक्ट. ईफिल इलेक्ट्रिक अगर कोई सुपर हीरो होता तो उसकी क्या सुपर पावर होती? फ्लैश आई वुड से. के दैट वुड बी रियल फास्ट. Yes. Okay. Rapid charging. तो आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? My wife. ओके, दैट वाज ऑसम. आई होप योर वाइफ इज लिसनिंग टू दिस. Hopefully. एलन मस्क, सब जानते हैं उन्हें. अगर उनके साथ आपकी रेस हुई एक ईवी कार में तो किस ट्रैक को आप चुनेंगे? BIC. ओके, एंड व्हाई? एंड हु वुड, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा उस रेस को? I'll try to give my best. ओके. कौन सी ईवी है जो इलेक्ट्रिक कार है जो आप जिसमें आप एक जॉय राइड लेना चाहेंगे? वी ऑल नो व्हाट कार यू ड्राइव, बट व्हाट्स योर ड्रीम? It'll be Waymo. It's a self-autonomous driving vehicle, so I would love to drive that or ride that sometime. Okay, so you'll not be driving but riding that. I'll be riding that. Okay, perfect. So isn't that, so I had a question on self-driving EV is awesome or terrifying. I think you already have answered that one. It's awesome. Awesome it is. And कोई ब्रांड एम्बेसडर जो ईफिल के लिए आपको लगता है एकदम सूटेबल हो? So would love to again Akshay Kumar to have our brand ambassador Okay, I hope Akshay. sometime. Okay, I hope Akshay is listening to this. Maybe sometime. Okay. What is the most outrageous EV concept you have ever seen? Outrageous EV concept. I've seen like amphibious vehicle wherein it was driving underwater. So an underwater EV. Exactly. ओके, सो कुछ यूजर्स हमसे सवाल करेंगे कि हम गाड़ी को पानी के ऊपर चलाने में डरते हैं, आप गाड़ी को अंदर लेके जाना चाहते हैं. Yes. ओके, दैट्स अ सुपरविजन. सो कोई वियर्डेस्ट प्लेस जहाँ पे आपको लगता है एक ईवी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल होना चाहिए? I think kitchen में. Okay, Because why? we have seen I think one incident जिसमें one customer took a scooter to their kitchen. So I think yes. I think he was in desperate need of that charging Exactly. station that day. Okay, wow. तो बताएं मैं कोई देसी फीचर जो आप ईवी में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐड करना चाहें? और मुझे लगता है कि आगे से गायें और वो सब हटाने के लिए दैट इज ट्रूली अ देसी फीचर. देसी. आई होप वो मेरी किसी भी गाड़ी में हो सके तो आई थिंक गांव वालों के लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा ये. कोई साई-फाई मूवी जिससे आप ईवी को रिलेट कर पाए और यू हैव सीन एन इलेक्ट्रिक व्हीकल दैट टाइम इन दैट?
Sci-fi. James Bond, I think. Using an electric vehicle. Yes. So, what Bollywood song would best describe the feeling of driving an EV? And you'll have to sing the song. So that has to be, I think, यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, इतनी हंसी है ये दुनिया. Very nice, very nice. So, I think EV की smoothness आपको इस track पे ले आई है. Actually, that's what inspired. Okay, so that's it from us. So, it was nice having a conversation with you, Mayank. Thank you. It was really lovely talking to you, PD, and to share and chat with you. Perfect, perfect. We thank you, Mayank, for coming here and sparing time. Hopefully कुछ viewers charging stations लगाने में interest लें ताकि common masses का I'm sure आपकी option बातें में सुन के काफी चार्जिंग स्टेशन और काफी ईवी की टेस्ट ड्राइव के लिए भी I भाग hope रहे so. होंगे. Okay, great. So this was it. So this was the end of the episode or the podcast pivot point from us, and let's meet up next. Thank you.